سرگزشت ایک کمسن سپاہی سالار کی، جو ایک مظلوم بہن کی پکار پر ہندو راجاؤں پر چڑھ دوڑا۔ تاریخ اسلام کے اس جرنیل نے بہادری، شجاعت اور قوت ایمانی سے نہ صرف سندھ کو فتح کیا بلکہ اپنے حسن سلوک سے وادی سندھ کو اسلام کے نور سے منور کر دیا۔ توحید پہ جان نشاور کرنے والے اس سپاہی کی کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل گلوبل نالج کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ شعبان 93 ہجری کی وہ رات تاریک تھی۔ اس رات کی تاریکی خون کی بو سے بوجھل تھی۔ بے شمار مشلوں کے شعلے تاریکی میں تیرتے پھر رہے تھے۔ زخمیوں کی آہو بکار رات کا جگر چاک کر رہی تھی۔ مجاہدین ٹولیوں میں بٹے ہوئے داہر کے مرے ہوئے زخمی فوجیوں کے ہتھیار اور دیگر ساز و سامان اکٹھا کر رہے تھے۔ کچھ ٹولیاں اپنے شہیدوں کی لاشیں اٹھا رہی تھیں۔ ایک دو ٹولیاں زخمیوں کو اٹھا کر پیچھے لا رہی تھیں۔ ان کی مرہم پٹی وہ عورتیں کر رہی تھیں جو محمد بن قاسم کی فوج کے ساتھ آئی تھیں۔ یہ مجاہدین کی بیویاں، بیٹیاں یا بہنیں تھیں۔ ہر لڑائی کے بعد زخمیوں کی دیکھ بھال وہی کرتی تھیں۔ مشکیزیں اٹھائے پانی پلاتی پھرتی تھیں۔ گھوڑ سواروں کا ایک دستہ داہر کی فوج کے ان گھوڑوں کو پکڑ رہا تھا جن کے سوار مارے گئے یا زخمی ہو کر گر پڑے تھے۔ محمد بن قاسم نے اپنی توجہ مال غنیمت پر مرکوز نہ کی۔ اسے معلوم تھا کہ یہ راجہ داہر کی فوج کے چند ایک دستے تھے اور ابھی ان کی فوج کا بہت بڑا حصہ تازہ دم روڑ کے گردونوا میں تیار کھڑا ہے۔ رات کے وقت لڑائی روک دی گئی تھی لیکن شب و خون کا خطرہ ہر طرف رہتا تھا۔ محمد بن قاسم نے اپنے دو سالاروں کو حکم دیا تھا کہ وہ اپنے اپنے سوار دستوں کو میدان جنگ سے کچھ دور لے جائیں اور ان راستوں پر گشت کرتے رہیں جن راستوں سے یا جس طرف سے دشمن کے شب و خون کا امکان تھا۔ یہ دفاعی انتظام لازمی تھا کیونکہ دشمن اناڑی نہیں تھا۔ راجہ داہر کی یہ سوچ کہ اس نے اپنی زیادہ تر اور زیادہ اچھی فوج کو اپنے پاس محفوظ رکھا ہوا تھا، ایک ایسے جنگجو کی سوچ تھی جو فن حرب و ضرب کو نہایت اچھی طرح سمجھتا تھا۔ محمد بن قاسم خود اس مارکے میں شامل نہیں ہوا تھا۔ رات کو وہ گھوڑے پر سوار میدان جنگ میں گھوڑا دوڑاتا پھرتا رہا تھا۔ اس کے ساتھ مشل بردار محافظ تھے۔ وہ میدان جنگ سے دور تک چلا گیا جہاں اس کے سوار دستے گشت کر رہے تھے۔ میرے رفیق کو اس نے دونوں سالاروں سے کہا، یہ ابتدا ہے، اسے دشمن کا انجام نہ سمجھنا۔ اللہ تمہیں ایسی ہی فتوحات سے نوازے، لیکن یہ خیال رکھنا کہ صرف ایک مارکا جیت کر اس خوش فہمی میں مبتلا نہ ہونا کہ دشمن اگلی لڑائی میں بھی اسی طرح تمہارے ہاتھوں تباہ ہوگا۔ راجہ داہر نے اپنے بیٹے کو یہ چاند ایک دستے دے کر اور انہیں ہم سے لڑا کر یہ دیکھا ہے کہ ہم کس طرح لڑتے ہیں اور وہ ہمیں کس طرح شکست دے سکتا ہے۔ اگلے میدان میں ہمیں زیادہ محتاط ہو کر لڑنا ہوگا۔ ابن قاسم ایک سالار حریم بن عمرو مدنی نے کہا، غم نہ کر، ہم اس روز اپنے آپ کو فاتح کہیں گے جس روز راجہ داہر کا سر تیرے قدموں میں پڑا ہوگا۔ اسلام کے راستے میں اس چٹان کو توڑ پھوڑ کر ہم کہیں گے کہ یہ ہے وہ فرض جس کی ادائیگی کے لیے ہم آئے تھے۔ اور اے ابن قاسم، دوسرے سالار وارث بن ایوب نے کہا، بے شک ہماری فتح آخری فتح نہیں، لیکن ہم نے ایک ایسی فتح پائی ہے جو آخری ہے۔ ہمارے مجاہدین ہاتھیوں سے ڈرتے تھے اور اب میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ داہر کے ہاتھی مجاہدین سے ڈرنے لگے ہیں۔ بے شک محمد بن قاسم نے کہا، میں نے اسلام کے سپاہیوں کو ہاتھیوں کی سونڈیں کاٹتے دیکھا ہے۔ محمد بن قاسم اپنے زخمیوں کو دیکھنے چلا گیا۔ زخمیوں کے لیے خیمے لگا دیے گئے تھے۔ زمین پر گھاس اور کپڑے بچھا کر زخمیوں کو لٹایا گیا تھا۔ وہاں جا کر محمد بن قاسم گھوڑے سے اتر گیا۔ وہ ہر خیمے کے اندر جاتا اور زخمیوں کے ساتھ باتیں کرتا تھا۔ ایک خیمے میں گیا۔ خیمے کے اندر مشلیں جل رہی تھیں۔ ایک بڑھیا ایک زخمی کو پانی پلا رہی تھی۔ اس سے پہلے اس بڑھیا اور اس زخمی کے درمیان کچھ باتیں ہو چکی تھیں۔ زخمی کی مرہم پٹی ہو چکی تھی۔ یہ بڑھیا جس کے چہرے پر بڑھاپے نے چند ایک لکیریں گہری کر دی تھیں، اسے پانی پلانے آئی تھی۔ تو کس کی ماں ہے؟ زخمی نے بڑھیا سے پوچھا۔ اس وقت میں ان تمام زخمیوں کی ماں ہوں جنہوں نے عرب کی لاج رکھنے کے لیے اپنا خون بہایا ہے۔ بڑھیا نے جواب دیا اور پوچھا، تجھے یہ خیال کیوں آیا ہے کہ میں کسی اور کی ماں ہوں؟ تو میری ماں ہے، زخمی نے کہا۔ میری ماں ہوتی تو وہ ایسے ہی پیار سے مجھے پانی پلاتی، مجھے کوئی اور خیال آ گیا تھا۔ تو اس عمر کو پہنچ گئی ہے کہ اب ہمیں تمہاری خدمت کرنی چاہیے۔ تیرا قبیلہ کون سا ہے؟ بڑھیا نے پوچھا۔ میں بنو امیہ میں سے ہوں، زخمی نے جواب دیا۔ اور تو؟ میں الافی میں سے ہوں، اس بڑھیا نے جواب دیا۔ الافی؟ زخمی نے چونک کر پوچھا، کیا ہمارے لشکر میں کوئی الافی قبیلے کا آدمی ہے جس کی تو ماں ہے؟ نہیں، بڑھیا نے جواب دیا۔
इलाफी कबीले का कोई आदमी बनु उमैया के लश्कर में नहीं हो सकता। हो भी कैसे सकता है? दुश्मनी दिलों में गहरी उतर गई है। फिर तू यहाँ कैसे पहुँच गई है? ज़हमी ने कहा। इलाफी तो बागी हैं, वो सब यहाँ आ गए थे और राजा दाहिर की पनाह में बैठे हुए हैं। मैं अकेली नहीं आई, बुढ़िया ने जवाब दिया। 4 औरतें और भी आई हैं। मैं तुम्हारे लश्कर के साथ अरब से नहीं आई, हम मकरान से आई हैं। तुमने ये दरिया किस तरह पार किया है? क्या कश्तियों का पुल नहीं बना था? बुढ़िया ने कहा। हम इस पुल से आई हैं, किसी ने नहीं रोका। मैं तेरे हाथ से पानी नहीं पीऊंगा, ज़हमी ने कहा। इतने में मोहम्मद बिन कासम हमे में दाखिल हुआ। ज़हमी ने बुढ़िया से कहा कि वो उठ जाए। सिपा सलार मोहम्मद बिन कासम आ गया है, इसे पता ना चले कि तू इलाफी कबीले की है। बुढ़िया उठ खड़ी हुई। उसने मोहम्मद बिन कासम का चेहरा अपने दोनों हाथों में लेकर उसका माथा चूमा। कासिम के बेटे, बुढ़िया ने मोहम्मद बिन कासम से कहा, क्या तू भूल चुका है कि तेरे बाप दादा बनु सकीफ में से थे? क्या बनु उमैया का नमक तेरे खून में इतना ज्यादा शामिल हो गया है कि तूने अपने लश्कर में इलाफियों की ऐसी दुश्मनी पैदा कर रखी है कि ये ज़हमी मेरे हाथ से पानी भी कबूल नहीं कर रहा? मोहम्मद बिन कासम के पूछने पर बुढ़िया ने उसे बताया कि वो इलाफी कबीले की औरत है और यहाँ तक किस तरह पहुंची है। तू नहीं जानता इब्ने कासम, बुढ़िया ने कहा। तू नहीं जानता कि इलाफियों की औरतें किस तरह तेरी फतह की दुआएं मांग रही हैं। जरा सोच के मैं इस उम्र में यहाँ तक किस तरह पहुंची होंगी। तुझे देखने की बड़ी ख्वाहिश थी। मैं तेरी आंखों में खालिद बिन वलीद, साद बिन वकास, अबू उबैदा बिन जरा और उसके साथियों को देख रही हूँ। अपने इस ज़हमी मुजाहिद से कह कि मेरे हाथ से पानी पी ले, मैंने इसमें जहर नहीं मिलाया। मैं इलाफियों को अपना दुश्मन नहीं दोस्त समझता हूँ, मोहम्मद बिन कासम ने एहतराम से बुढ़िया से कहा। इस ज़हमी को मालूम नहीं कि इलाफी किस तरह हमारा साथ देते रहे हैं। मोहम्मद बिन कासम ने हुश्मगीन निगाहों से ज़हमी की तरफ देखा। ज़हमी इन निगाहों को समझ गया। इतना ज्यादा ज़हमी होने के बावजूद वो उठ बैठा और उसने दोनों हाथ बुढ़िया की तरफ फैला दिए। बुढ़िया ने उसके करीब बैठकर अपने हाथों से उसे पानी पिलाया। कबीले एक दूसरे के दुश्मन हो सकते हैं, बुढ़िया ने कहा, लेकिन ये दुश्मनी इस्लाम या रिश्ता नहीं तोड़ सकती। जिस रोज ये रिश्ता टूट गया उस रोज इस्लाम भी टूट फूट कर बिखर जाएगा। मुजाहिदीन उनकी कब्रें खोद रहे थे। सबका मुश्तरका जनाजा पड़ा गया और अरब के ये सरफरोश सिंध की रेत में हमेशा के लिए दफन हो गए। मोहम्मद बिन कासम ने हिजाज के नाम हाथ लिखवाया, जिसमें उसने इस पहले खुले मार्के की तफसील लिखी और उसे इस पहली फतह की खुशखबरी सुनाई। इससे पहले मोहम्मद बिन कासम ने किले फतह किए थे। ये पहली जंग थी जो खुले मैदान में लड़ी गई थी। कासिद को हाथ देकर मोहम्मद बिन कासम ने कहा कि कहीं रुके बगैर ये हाथ हिजाज बिन यूसुफ तक ले जाए। हस्बे मामूल 7वें दिन हिजाज बिन यूसुफ का हाथ उसी कासिद के जरिए आ गया। हिजाज ने मोहम्मद बिन कासम और उसके लश्कर को मुबारकबाद लिखी थी, कुछ हदायत भी लिखी थी और उसने ये भी लिखा कि मोहम्मद बिन कासम वहां पहुंचे जहां राजा दाहिर ने अपनी फौज जमा कर रखी है। कभी ना भूलना कि खुदा की मर्जी के बगैर शानो शौकत और फतह व कामरानी हासिल नहीं हो सकती। हिजाज ने आहर में लिखा, अल्लाह पर यकीन रखोगे और आहोजारी से उसकी मदद के तलबगार रहोगे तो हर मैदान में फतह पाओगे। चंद दिनों बाद ये मैदान साफ हो चुका था। जयसिना के लश्कर की लाशें दरिया में फेंकी जा चुकी थीं। मरे हुए घोड़े और वो 4 हाथी भी घसीट कर दरिया में फेंक दिए गए थे। वहां अब ज़ख्मी मुजाहिदीन के हैमे और शहीदों की कब्रें रह गई थीं और मोहम्मद बिन कासम का लश्कर था जो पेशकदमी की तैयारियां मुकम्मल कर चुका था। एक शाम सूरज गरूब होते ही तमाम लश्कर की निगाहें मगरब की तरफ उफक के ऊपर कुछ ढूंढ रही थीं। अचानक किसी ने नारा लगाया, नजर आ गया। ये नारा खुशी के हंगामे की सूरत इख्तियार कर गया। मुजाहिदीन के लश्कर को माह रमजान का चांद नजर आ गया था। राजा दाहिर को भी माह रमजान का चांद देखकर खुशी हुई। वो इस चांद के इंतजार में था। उसने अपने बेटे जयसिना से कहा था कि वो मुसलमानों के सामने उस वक्त आएगा जब रमजान शुरू हो चुका होगा और मुसलमान दिन भर भूखे और प्यासे रहा करेंगे। आधी रात का अमल होगा कि एक मुकामी नौ मुस्लिम आया और शबान सखवी के हैमे में चला गया। वो जासूस था। उसने बताया कि रावड़ के करीब राजा दाहिर की फौज इकट्ठी हो रही है। जासूस को ये मालूम नहीं हो सका था कि फौज किस तरफ पेशकदमी करेगी, या वो वही मोहम्मद बिन कासम की फौज का इंतजार करेगी या इस फौज को ललकारेगी। बहरहाल जासूस को ये यकीन हो गया था कि फौज जंगी तरबियत में हो रही है। शबान सखवी ने जासूस को साथ लिया और मोहम्मद बिन कासम के हैमे में चला गया। मोहम्मद बिन कासम गहरी नींद से जागा और जासूस से पूरी रिपोर्ट सुनी। उसके बाद वो सो ना सका। उसने शबान सखवी से कहा कि वो खुद आगे चला जाए और राजा दाहिर की फौज की नफरी और दीगर क्वाइफ देखे। शबान सखवी को मालूम था कि उसने क्या देखा है। वो चला गया। मोहम्मद बिन कासम ने अपने सालारों को बताया कि वो वक्त आ गया है जिसका उन्हें इंतजार था और दुश्मन भी उसी वक्त के इंतजार में था। राजा दाहिर की जाती जंगी तैयारी शहाना थी। तारीखों में उसके हाथी का रंग सफेद लिखा गया है।
दरअसल सफ़ेद नहीं था। सफ़ेद हाथी एक मुहावरा है। दाहिर के हाथी का रंग दूसरे हाथियों की निस्बत हल्का और साफ था, इसलिए दूसरे हाथियों में वो अलग थलग लगता और इसी वजह से सफ़ेद कहलाता था। वो कद कामत में बड़ा हाथी था, कद और जिसामत के लिहाज से बाकी तमाम हाथियों से बड़ा था। उसे कभी किसी मादा के करीब नहीं जाने दिया गया था, इसलिए ये बदमस्त रहता था। दूसरे जंगी हाथियों को भी इस तरह बदमस्त रखा जाता और लड़ाई से पहले उन्हें शराब पिलाई जाती थी। इस हालत में उन्हें उनके महावत ही काबू में रख सकते और अपने इशारों पर चलाते थे। राजा दाहिर के हाथी पर जो हुदा बांधा जाता वो उसकी शानो शौकत के ऐन मुताबिक और कुशादा होता। इसमें फेंकने वाली बहुत सी बर्छियां और तीरों का जहीरा रखा जाता था। एक या दो आदमी दाहिर के हाथी के हुदे में बर्छियां और तीर उसे देने के लिए रहते थे। दाहिर के तीर दरअसल बड़े थे, इनके दोनों सिरे तीरों की तरह ही नुकीले थे, लेकिन इनकी शक्ल पहली के चांद जैसी होती थी या ऑस्ट्रेलिया के हबशियों के मशहूर हथियार बॉम्ब रेंग जैसी थी। दाहिर के इन मुड़े हुए तीरों का अंदरूनी किनारा तलवार की तरह तेज धार होता था। बॉम्ब रेंग हाथ से फेंकी जाती है, लेकिन राजा दाहिर ये हाथ तीर गूपन में डालकर फेंका करता था। गूपन रस्सियों की बनी हुई होती थी, इसमें से तीर सीधा दुश्मन के सर पर लगता था। अगर गर्दन इसके रास्ते में आ जाती तो गर्दन साफ कट जाती और तीर आगे निकलकर एक और आदमी को जख्मी कर सकता था। गूपन से तीर निशाने पर भी फेंका जा सकता था, लेकिन इसके लिए महारत की जरूरत होती थी। राजा दाहिर के हुदे में दो इंतहाई खूबसूरत और नौजवान लड़कियां होती थीं। बाज मोरहों ने लिखा है कि लड़ाई के दौरान एक लड़की राजा दाहिर को शराब और दूसरी पान बना कर देती थी, लेकिन दो तारीख नवीसों ने इसकी तरवीद की है जो सही मालूम होती है। वो इस तरह है कि 93 तक पान इस तरह खाने का रवाज शुरू नहीं हुआ था। शराब तो महाराजे भी पीते थे, लेकिन ऐसे नहीं कि लड़ाई के दौरान पीते ही चले जाते। इससे होशो हवास गुम हो जाने का खतरा होता था। राजा दाहिर होशमंद जंगजू था और वो मैदान जंग में होश में रहता था, इसलिए उसके हुदे में दो खूबसूरत कनीजें रहती थीं और वो शराब भी साथ रखता था जो दाहिर ज़रूरत के मुताबिक पीता था।